Assalamu alaikum students. So now today we will enter into the chapter called periodic table. है ना? So the first question is why we have this periodic classification of element. The simple answer you can understand that have you gone to a pharmaceutical shop or medical shop and you ask some medicine, okay? So you found it not they just know it where is the medicine. They just open that drawer and they will give you that capsule, or you can ask them some syrup. Cough syrup is where is that syrup is which place. They know it, and it is very easy for them to take it out. And how it done? They have chosen the similar character, okay, है ना? If it is for fever, so they have kept the capsule, okay, in that particular drawer, है ना? The cough related, they keep the syrup at a particular drawer, है ना? So similar to the characteristic or the pattern or the use, है ना? So the people are keeping the medicine. Yes. Another example is the example you take. We have a student in a school, है ना? So those students who are in nursery, yeah, they are small students. Then high, okay, then junior kg, senior kg, first, second, third, fourth, okay. And as the age, as the ability, understanding increases, the grade of the students are divided or distributed. Yeah. ऐसा तो नहीं है कि 12th standard students are sitting in first standard and nursery students are sitting with 12th standard, all are mixed together. No, we have categorized similar to their property. Yeah, in your class most of your friends are of your age, they have your own talent, okay, they have similar strength, similar understanding, so that make a class. In a class all the students have similar age, yeah, similar understanding, strength, and all these things. So that way the class is divided, okay, categorized, and the school is subdivided into several class. Same as element, okay. We have done the going to read about this element, and we have now numbers of element. In our today daily life we have 118 elements. These are all the points we are going to cover, okay. I hope you have already covered the basics of this chapter, because that basic is very important. If you not cover it now, go through it and then start this chapter, otherwise you will not understand this chapter. See the number of element here. Total number is 118. And what is the element? An element is a type of matter composed of only one kind of substance, है ना? एक type of substance का बना हुआ चीज है ना? एक एल्यूमिनियम रॉड इफ यू आर टेकिंग, ओके, सारे उसमें एटम रहेंगे, वो एल्यूमिनियम के एटम रहेंगे, तो वी कैन से दिस इज द मेडअप ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट. समझ रहे? तो सी दिस इज our classification of element and this is the periodic table that we are going to read today, है ना? अब इसको क्या किए, कैटेगरीज किए कि कैसे कैसे अरेंज करने का है, किसको ओके वी हैव टू कीप अहेड, किसको बैक साइड में, किसको ऊपर, किसको नीचे रखने का है. व्हाट दिस कलर्स, ओके, व्हाट दिस कलर्स आर इंडिकेटिंग here, why hydrogen is here, why helium is here, है ना, why lithium is here, है ना. तो ये ऐसे नहीं बस उनका साइंटिस्ट का दिल करा तो रख दिए. नो, दे हैव ओके प्रॉपर्टी सिमिलर टू ईच अदर. They have some reason for keeping each here and there. Why it is this side, okay, where the metal, where the non-metal, है ना, why this is okay outside of here. So they have some reason, है ना. तो for इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ना, हाउ द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड. तो ये 118 एलिमेंट्स आर देयर एंड एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड. और सारे एलिमेंट ओके दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी है. तो सबका सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को क्या करेंगे, तो एक साथ रखते हैं, है ना. जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं तो दे आर कीपिंग क्लोज टू ईच अदर. तो इसको क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने के लिए ना बहुत से साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया कि कैसे क्लासिफाई करेंगे. और क्लासिफाई का रीज़न क्या है, ताकि उनसे इंफॉर्मेशन लेना ईजी हो जाए, है ना.
इंफॉर्मेशन लेना इजी हो जाए। या बेरिलियम इज देयर, तो बेरिलियम निकाले। ओके, एटॉमिक नंबर क्या है, बेरिलियम का 4 है, सिंबल बी है ना। एटॉमिक मास क्या है, दिस मच है, नेम ऑफ द एलिमेंट बेरिलियम 4 है, तो 4 वाला इधर है, फिर 5 इधर है, 6 7 8 9 10। इट इज अरेंज इन अ दैट वे, एटॉमिक नंबर के थ्रू अरेंज किया हुआ है यहाँ पे। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। यस। अब इनिशियल साइंटिस्ट क्या कहते पहले एलिमेंट को कैसा फाइंड किए थे, गोल्ड सिल्वर कार्बन, ये सब पहले बहुत पुराना जमीन। ओके, एंशियंट टाइम से एलिमेंट ये मालूम है ह्यूमन बींग को, मतलब एंशियंट 5000 6000 ईयर से गोल्ड मालूम है ना। आप जो प्री हिस्टोरिक बुक हिस्टोरिकल बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी गोल्ड सिल्वर, ओके, आयरन कॉपर, कॉपर एज भी मालूम होगा, ब्रॉन्ज एज मालूम होगा। तो दीज एलिमेंट दे नो, ओके है ना, तो उनको मालूम था। अभी उनको कैटेगरीज में कैसे किए बोले भाई, है ना, मेटल नॉन मेटल, एक नॉन मेटल में की इजी कैटेगरी है ना। अब मेटलॉइड नहीं, बाद में पता चला उनको, तो उन्होंने क्या किया कि मेटल नॉन मेटल सी, कॉपर सिल्वर आयरन मेटल है, गोल्ड है ना, और नॉन मेटल कार्बन सल्फर नॉन मेटल है। अब जो दोनों का कोई सिमिलर प्रॉपर्टी है दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, मेटोलाइट है ना, दे इट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, दिस इज कॉल्ड एज मेटलाइट। तो ये कैटेगरी हो गया है ना, एक मेटल में एक नॉन मेटल की कैटेगरी में, और तीसरा इफ दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ तो दैट इज द मेटोलाइट है ना। तो दिस इज वन ऑफ द कैटेगरी है ना। अभी क्या, ये तो लिमिटेड एलिमेंट है, अभी एलिमेंट का डिस्कवरी ज़्यादा होने लगा है ना, तो दे फिर की अभी क्या करेंगे, इसको सिस्टमेटिक वे में अगर हम लोग क्लासिफाइड करने का है तो कुछ और फंडा निकालने पड़ेगा है ना, कुछ और रीज़न होना चाहिए, कुछ मेथड होना चाहिए, ताकि इजी वे में को अंडरस्टैंड किया जाए ना। तो ऐसे जिग यू अंडरस्टैंड सी और जिगजैग इट इज़, तो कैसे समझेंगे क्या क्या है कैसे, तो हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो हमारे लिए अगर हम लोग ये पढ़ेंगे एलिमेंट तो इट विल बी इजी, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तो इजी हो जाएगा केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना। अब ये तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, अभी 118 एलिमेंट को जो डिफरेंट है तो उनको कैटेगरीज भी किए। और ये स्टार्टिंग से कब से स्टार्ट हुआ काम, बहुत साल पहले से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट क्या किया, किसने किया था, जॉन डेल्टन। ओके, आप यू हैव रीड हिज नेम इन 9th स्टैंडर्ड, इंग्लिश केमिस्ट, ओके, इंग्लैंड के है ना। उन्होंने व्हाट ही सेड है ना, ये 1808 में इन्होंने स्टार्ट किया एलिमेंट के बारे में बोलना है ना। जो एटॉमिक थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया, व्हाट इज द एटॉमिक थ्योरी, कि एवरी एटम हैज मास, सारे एटम के पास मास है ना। तो एटम इज अ मैटर, मैटर का क्या होता है, मास होता है ना। और एटॉमिक मास क्या है, उसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो अगर किसी एटम को जानने का है तो उसको हमें एटॉमिक मास को जानने का रहेगा, तो एटॉमिक मास से हम उसकी प्रॉपर्टी को जान सकते हैं। हु सेड, जॉन डेल्टन, ओके, ही वाज द फर्स्ट पर्सन। अब उसके बाद क्या है, जर्मन केमिस्ट है ना, डॉबर्नियर है ना, जॉन वॉल्फगंग डॉबर्नियर, उन्होंने क्या किया, अपना थ्योरी दिया है ना, और बताया कि बेसिक प्रॉपर्टी कैसे एलिमेंट का मतलब ये हम लोग कैसे कैटेगरी कर सकते हैं है ना। जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर है उसको एक ग्रुप में डाले, उसको क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं है ना। एक फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सिमिलर रहता है ना, एक भाई सिस्टर का आपस में, तो उसको फैमिली बोलते हैं। तो जॉन डबर्निया ने क्या 1817 में ना, हाँ, उसने सजेस्ट किया प्रॉपर्टी कैसे होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए एटॉमिक मास की, एटॉमिक मास के रिलेटेड होता है प्रॉपर्टी। और उसने थ्योरी दिया क्या, डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड है ना। लेट्स सी डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड क्या है, ही अरेंज केमिकली सिमिलर एलिमेंट है ना, जो सिमिलर एलिमेंट है केमिकली, ओके, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में सिमिलर है तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, किसके, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है ना। कितने का ग्रुप बनाया, इसका 3 का ग्रुप बनाया, जस्ट 3 का ग्रुप बनाया तो उसके लिए उसका नाम क्या हो गया, ट्राइड नाम हो गया। ओके, ही मेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ओके, हाउ मेनी, हाउ मच, 3 एलिमेंट है ना। और
तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास होना चाहिए और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, इसको क्या बोले, ग्रुप को ट्राइड बोले, है ना, डॉबर्नियर ट्राइड, है ना। एग्जांपल देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, उसका सिंबल क्या है, लिथियम LiNaK, है ना, एटॉमिक मास 6.9 इतना इतना इतना, ओके। अभी ये क्या हुआ कि ये दो जो मास है ना, इसका इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में मास है ना, तो व्हाट ही फाउंड दैट, है ना, उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, इसे सिमिलर, या तो व्हाट ही फाउंड दैट कि ये दोनों के मास को ऐड करेंगे, ओके, है ना, और डिवाइड करेंगे टू से, तो ही विल गेट द मास ऑफ सोडियम, है ना। अभी देखो सारे एलिमेंट क्या है, मेटल्स है ना, और वाटर के साथ बनेगा क्या, अल्कलाई बनेगा, और हाइड्रोजन गैस के साथ क्या करेंगे, है ना, रिएक्ट करेंगे, है ना, सॉरी, वाटर के साथ क्या बनेगा, अल्कलाई, है ना, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, है ना। सबका वैलेंसी क्या है, 1 है, ये तीनों का वैलेंसी क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, सेम हो गया। अब ये को क्या करते हैं कि ये दो जो है सो लिथियम और पोटेशियम को ऐड करते हैं, तो क्या होता है, उनको मिलता है सोडियम का मास मिलता है, ठीक है। जैसा कि मैं आगे बढ़ गया, सोडियम का मास मिल जाता था, सी है। यहाँ पे देखो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, है ना, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, ओके, है ना, तो देखो ऐड किया बाद में डिवाइड किया, मतलब एवरेज निकाले, ठीक है। किसका मास मिला, 88.7, ये क्या एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ बेरियम, है ना, ये दोनों को ऐड किए, उसका एवरेज निकाले, ही गॉट 88.7, जो कि स्ट्रोंशियम का मास के ओके बराबर है, ओके, नियर बाई है ना। तो ये इसने फाइंड किया, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा, अभी देखो यहाँ पे भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक था, दे आर मेटल, अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, ओके, है ना। ऑक्साइड जो होता है इसके कैल्शियम CaO जो क्या होता है, अल्कलाइन नेचर होता है, बेसिक होता है, और सारे एलिमेंट जो हियर इज दे हैव वैलेंसी 2। अभी देखो एक और एग्जांपल, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, है ना, इनका सिंबल क्या, ClBrI, और एटॉमिक मास क्या है, ओके, इज दिस मच ना। अभी इसका एवरेज निकालते हैं, ओके, है ना, क्लोरीन और आयोडीन का, तो व्हाट ही विल गेट, ब्रोमीन, है ना, ब्रोमीन का 79.9 है और 81 है, मतलब ओके नियर बाई में, है ना। तो उसने ये चीज़ बताया कि एटॉमिक मास क्या है ना, पहले दो फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ऐड करेंगे ग्रुप के, ट्राइड जो ग्रुप है 3 ग्रुप, ओके, तो बीच वाले का, ओके, मिडिल वाले का एटॉमिक मास, ओके, वी विल गेट। तो ये क्या था, है ना, डॉबर्नियर का ट्राइड था। अब इसका लिमिटेशन क्या है कि ये जो बाकी जो एलिमेंट पाए गए ना, तो उसके बाद फॉलो नहीं हुआ, है ना, फ्यू एलिमेंट ही था, बाकी जो एलिमेंट ये ट्राइड का रूल फॉलो नहीं किए, तो ये यूजफुल नहीं हुआ, बाद में जाके ये फ्लॉप हो गया ना। अब उसके बाद जो, ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, जॉन न्यूलैंड, ओके, इंग्लिश साइंटिस्ट इंग्लैंड के, ही प्रपोज, है ना, उसका अपना थ्योरी प्रपोज किया, है ना, 1866 में, डॉबर्नियर के फ्लॉप होने के बाद ना। अब वहाँ तक, ओके, हाउ मच एलिमेंट वाज फाउंड, 56 एलिमेंट वाज फाउंड, ओके, जॉन न्यूलैंड, ओके, एट हिज टाइम 56 एलिमेंट वाज नोन, है ना, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में लोगों को मालूम था, है ना। तो अब जॉन न्यूलैंड क्या किए, ही ऑल्सो स्टार्टेड अरेंजिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना स्टार्ट किए। तो ही बिगेन विद द लार्जेस्ट एलिमेंट क्या, हाइड्रोजन, एंड एड विद थोरियम, सी, है ना। अभी ये जो स्टार्ट किया क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना, करते करते ओके कैल्शियम तक, ओके, आए, है ना। अभी बोले इसने ही व्हाट ही फाउंड, ओके, कि एवरी 8 एलिमेंट जो है ना, एवरी 8 पहले से जो स्टार्ट करेंगे 8वां जो एलिमेंट होगा ना, वो क्या हो रहा है कि उसका प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्हाट ही डन, ही अरेंज्ड, कौन, न्यूलैंड, ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टी, है ना, और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों के स्ट्रक्चर किया पाया, तो व्हाट ही फाउंड कि एवरी 8 एलिमेंट, है ना, 1 2 3 4 6 7, ओके, एंड दिस इज द 7, देखो हाउ मच इट इज, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 हुआ। अभी 8 क्या हुआ
ही फाउंड द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन वाज सिमिलर, ओके, तो ही प्लेस इट बिलो एच। अब इसको क्या किया, एच के नीचे रख दिया। अभी क्या हुआ कि सोडियम का प्रॉपर्टी लिथियम से सिमिलर है, उसको उसके नीचे रखा। बी का बेरिलियम का Mg से, बोरॉन का एल्यूमिनियम से, कार्बन का है ना सिलिकॉन, ओके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, और फिर क्लोरीन का फ्लोरीन के, और पोटेशियम का सोडियम से, और मैग्नीशियम का कैल्शियम से ना। तो जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर है उसके इसके नीचे रखते हैं है ना। बट ई फाउंड कि आठवां जो एलिमेंट है ना वो क्या हो रहा है ना, पहले एलिमेंट के से प्रॉपर्टी सिमिलर हो रहा है, तो वो उसके नीचे रख रहा है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो आठवां क्या हो रहा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन इसके नीचे है। तो व्हाट ही फाउंड कि द प्रॉपर्टी इज सिमिलर है ना। सोडियम का प्रॉपर्टी किससे सिमिलर रहेगा, पोटेशियम के और लिथियम से। ये 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 इज पोटेशियम, सोडियम के आफ्टर सोडियम 8 एलिमेंट इज पोटेशियम, तो both these property are similar. Magnesium Cm 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम प्रॉपर्टी इज सिमिलर। तो व्हाट इज सेड कि ये 8 के बाद क्या हो रहा है, 8 आफ्टर 8 द प्रॉपर्टी इज रिपीटिंग है ना। तो ये क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेट का प्रॉपर्टी दिया है ना, आर सिमिलर। अब इसको क्या क्या होते हैं, म्यूजिकल नोट से बताया, वो गाते ना, सारे गामा पा धानी सा है ना। तो सा से स्टार्ट करते धानी है ना, उसके बाद क्या होगा, वापस से सा पे आता है ना। तो यही क्या होगा, वापस यहाँ से स्टार्ट किया 7 तक, 7 के बाद क्या, 8 जो एलिमेंट रहेगा वो सिमिलर रहेगा, इसने बोला सारे गामा पा धा नी, ओके, नी के बाद क्या है, वापस से सा आएगा है ना, तो सा के नीचे आ जाएगा, तो सेम यहाँ, ओके, ओवर ईयर है ना। एच इज ए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, उसके बाद 8 एलिमेंट इज एफ है ना, तो एफ इसके नीचे आ गया है ना। एफ एलिमेंट क्या हो गया, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, आठवां एलिमेंट ओके इज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8, ओके है ना, 8 का लॉ उसने बनाया। तो when the element are arranged in increasing order of atomic mass, the property of the 8 element are similar to the first. This is the law, okay, we have to learn this. अब law को जैसे okay it is written in the textbook, that you have to write in the board also. And the law we can't change, explanation we can change, okay, but law को as it is we have to write. लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड टेबल। अब इसका लिमिटेशन क्या हो गया है ना, कि ये जो है ना एलिमेंट सिर्फ कैल्शियम तक ऐसे फॉलो हो रहा था बस। अब बाकी जो 56 एलिमेंट थे दे आर नॉट फॉलोइंग दिस हियर है ना, द रेड मार्क, ओके है ना, टिल कैल्शियम इट इज फॉलोइंग, आफ्टर कैल्शियम ओके दे आर नॉट फॉलोइंग दैट थिंग है ना, वो सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा था, तो ये तो रॉन्ग हो गया। जैसे मैंगनीज है ना, वो फॉस्फोरस के नीचे है, मैंगनीज क्या है, मेटल है ना, ये फॉस्फोरस नॉन मेटल है, तो कैसे फॉलो होगा। सल्फर और ये आयरन है, कैसे फॉलो होगा, तो ये क्या हो रहा है, रॉन्ग हो गया ना। 2 एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी आर प्लेस्ड इन सेम बॉक्स, देखो है ना, यहाँ पे सेम बॉक्स है इधर, तो कोबाल्ट और निकल मेटल है एंड इट इज प्लेस्ड ओवर हियर इन द सेम है ना ग्रुप में, क्या किए, वर्टिकल कॉलम है ना यहाँ पे, तो ग्रुप में रख दिए, यहाँ पे दे इट इज डिसिमिलर, तो यहाँ पे रख दिए, तो इट इज रॉन्ग। कोबाल्ट और निकल इट इज नॉट, ओके, ये दोनों मेटल है और ये बाकी नॉन मेटल है, तो कैसे रख दिए इसमें, तो ये गलत हो गया ना, ये लिमिटेशन हो गया, लिमिटेशन मतलब रॉन्ग हो गया, ओके। अब आयरन क्या होता है, आयरन और जो था निकेल कोबाल्ट क्या था, सेम था है ना, लेकिन एक दूसरे को क्या किया, अलग करके रख दिया। अब इनर्ट गैस आफ्टरवर्ड, इनर्ट गैस जो है ना इट इज फाउंड, तो उसके लिए ये ओके इट हैज नो आंसर, ये टेबल में न्यूलैंड के टेबल में कोई आंसर नहीं था कि इनर्ट गैस को वेयर शुड बी प्लेस। तो ये सब लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए रशियन केमिस्ट ओके मेंडलीव, डेमेट्री एवनविच मेंडलीव, ओके, उसने प्रपोज किया थ्योरी है ना, उसने प्रपोज किया थ्योरी एंड इट वाज वेरी फेमस। और इसी के लिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं इसको। तो मेंडलीव ओके, तो इम्पॉर्टेंट है हम लोग इसको पढ़ने का। बोर्ड के एग्जाम में
हाँ, तो देयर विल बी क्वेश्चन, आप बताओ अपनी डबर्नियर थ्योरी, ओके बताओ लिमिटेशन एडवांटेज, ये फिर न्यूलैंड का एडवांटेज बताओ, लिमिटेशन बताओ, व्हाट वाज न्यूलैंड, ओके लॉ ऑफ ऑक्टेव। और मेंडलीव में एडवांटेज भी पूछते हैं और लिमिटेशन भी पूछते हैं, इसका क्या लॉ था ये भी पूछते हैं, ओके। तो ये क्या किया इन्होंने भी, क्या किया जैसे बाकी लोग क्या कर रहे थे एटॉमिक मास के थ्रू, ही ऑल्सो अरेंज एटॉमिक मास के थ्रू अरेंज करना स्टार्ट किया, है ना। और ही ट्रांसफर, उसने क्या किया केमिकल प्रॉपर्टी को भी इंपॉर्टेंस समझा, एटॉमिक मास से ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी को भी इंपॉर्टेंस दिया इसने अरेंज करने के टाइम में। अभी वो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, ऑक्साइड और जो हाइड्राइड होता है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, वो सारे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विथ ऑल द एलिमेंट्स, देखो ना सारे एलिमेंट जो है ये ऑक्सीजन और इससे रिएक्ट करेंगे, तो उनके प्रॉपर्टी को उसने क्या किया उसके थ्रू, हाँ इनका प्रॉपर्टी कैसा है, इनका प्रॉपर्टी कैसा है, अकॉर्डिंग टू डैट सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे, डिसिमिलर कर रहे, तो वैसा ये क्या किया अरेंज करना स्टार्ट कर दिया मेंडलीव, है ना। अगर सिमिलर रहा तो क्या कर रहे उसके नीचे रख रहा है, अगर डिसिमिलर रहा तो उसके, है ना, बिसाइड डाल रहे, है ना, इन हॉरिजॉन्टल वे। सपोज ये सिमिलर है सोडियम और लिथियम तो उसके नीचे डाल दिए, अब ये थोड़ा अलग है तो इसके हॉरिजॉन्टल में डाला, ये बेरिलियम और मैग्नीशियम सिमिलर है तो उसके मैग्नीशियम को उसके नीचे डाल दिया उसने, इन दिस वे ना वो अरेंज करना स्टार्ट किया। अभी कैल्शियम अभी कैल्शियम के बाद ना दो एलिमेंट जो सिमिलर होना चाहिए था एल्युमिनियम के जैसा, दैट इज नॉट फाउंड, वो फाउंड नहीं हो रहा था, तो वो क्या किया उसने बोला कि नहीं कोई भी एलिमेंट नहीं डालूंगा, तो मैं इसके लिए स्पेस हो क्या लीव द स्पेस, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी एलिमेंट है ना इफ इट इज डिस्कवर्ड तो वो वहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो इट इज बेनिफिट, ओके वो जीनियस था कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं मतलब यहाँ पे डालते जा रहे नहीं, वो सोचा कि हाँ आगे फ्यूचर में कि अभी क्या होगा कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा, ओके जो यहाँ पे ये वैकेंट स्पेस में क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो स्पेस छोड़ दे रहा था, अगर डिसिमिलर प्रॉपर्टी हो गया तो स्पेस छोड़ दिया। क्लियर, ये ऑल आर हैविंग फॉर्मूलास हियर, बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, तो दे ऑल आर पुट ओके इन अ ग्रुप वाइज, ओके ग्रुप में वर्टिकली डालते गया, और यहाँ पे नहीं हो रहा था तो यहाँ पे उसने वैकेंट छोड़ दिया, तो अभी इसी के थ्रू उसने क्या किया पीरियोडिक लॉ बनाया, ओके फॉर्मुलेटेड, है ना, ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का था उसने बनाया। सी भैया ये R2, ओके R2 पे हम अपने रिएक्शन में कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, R2O लिखते हैं ना, ये ओके इट इज नॉ, ओके अभी ऐसा सिस्टम चलता है, मतलब देखो CO2 ए है ना, 2 जो नीचे लिखे वैलेंसी, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या करते थे ये इसको ऊपर लिखते थे, ठीक है ना, तो मतलब ये क्या बताया R इज द एलिमेंट, H एलिमेंट है तो H2O, तो H2O कैसा होगा अभी H2O पहले ऐसा है H2O ऐसा था, इट इज सिमिलर, है ना दोनों सेम है, R इज द एलिमेंट एंड O इज द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ये बता रहा है ना। तो फर्स्ट ग्रुप 1 में सारे एलिमेंट क्या करे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो R2 बनाएंगे, मतलब Li2O Na2O K2O ऐसा बनाएंगे, ओके है ना H2O, तो ऐसा इसलिए वो सारे को एक जैसे डाला उसमें सिमिलर एलिमेंट, है ना एक ग्रुप 1 में डाला। नेक्स्ट जो है ना बी बेरिलियम, वो कैसा रहेगा, बेरिलियम का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो ये RO हो गया ना। Mg का वैलेंसी 2 है, कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, तो सब क्या बनेंगे CaO, क्या बनेंगे CaO, है ना इसका वैलेंसी 2 इसका वैलेंसी 2, वैलेंसी कैंसिल हो गया MgO, है ना तो R इज द Mg ओवर हियर, O इज द ऑक्सीजन ओवर हियर, तो ये सेम केमिकल फार्मूला बना रहे ना, और यहाँ पे भी 2,3 बोरोन में सेम केमिकल फार्मूला बना रहे, ओके तो इन दिस वे वो क्या किया अरेंज करना स्टार्ट किया। अभी देखा कि हाँ अगर इसका प्रॉपर्टी ऐसा नहीं हो रहा ना तो जगह छोड़ दे रहा है, ठीक है देयर स्पेस छोड़ दिया लेकिन उसने क्या किया उसका प्रिडिक्शन करके रखा था कि हाँ कौन सा एलिमेंट वो उसमें फाइंड होगा,
तो क्या था ये, क्या बोलते हैं मेंडलीव लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, है ना। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मतलब जो रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, ओके, वो फंक्शन है एटॉमिक मास का। ये रिपीट होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिपीट होते जाते हैं। तो ये थ्योरी हमें अब जैसे फेनोमेना सनराइज सनसेट होता है, ओके, तो पीरियोडिक होता है, जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसको पीरियोडिक बोलते हैं, याद रखना। पीरियोडिक मतलब जो रिपीट हो रहा है बार बार आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो इस हिसाब से वो मेंडलीव ने क्या किया, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल उसने बनाया था कि ये रिपीट हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ना। लिथियम देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर, है ना। फिर बाद में वापस से पीरियड क्या हो, इसका प्रॉपर्टी क्या हो, रिपीट हो गया, तो एन क्या हो गया, यहाँ पे लिखा गया। सिमिलर प्रॉपर्टीज को इसको यहाँ पे लिखा गया एन को, है ना। फिर है ना डिफरेंस होते थे, वापस से एटॉमिक मास क्या हुआ, है ना। तो देखे कि अरे ये प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, तो इसको नीचे लिख दिए। तो प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, वापस से क्या हो रहा है, रिपीट होता है। रिपीट को क्या बोले, पीरियोडिक, ओके, यहाँ पे पीरियोडिक बोल रहे हैं। The horizontal row in the period are called period, ओके। हॉरिजॉन्टल रो ऐसे जाएंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, पीरियड। जैसे वहां पे देखो कंप्यूटर रखा हुआ HP का, देखो HP का प्रिंटर है ना, तो HP मतलब हॉरिजॉन्टल, P मतलब पीरियड, तो इसको याद करने को H मतलब हॉरिजॉन्टल, P मतलब पीरियड, HP, ओके, सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो आपको इजी हो जाएगा, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल है ना। तो हाउ मेनी पीरियड हियर, कितने पीरियड थे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनिंग, कितने, 7 पीरियड है, 1 2 3, ओके, 7 पीरियड, है ना। उसमें पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड था। अब जो वर्टिकल जो रहेगा ना, सीधा सीधा, ओके, वर्टिकल कॉलम, तो उसको क्या बोले, ग्रुप नाम रखे, ओके, वर्टिकल कॉलम ग्रुप। तो GV याद रखना, ओके, G एंड V, GV मतलब वर्टिकल जो रहेगा कॉलम वो ग्रुप रहेगा, और HP कंप्यूटर HP होता है ना, HP कंपनी, तो दिस इज पीरियड, ये अब क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। इट इज इजी टू लर्न, HP और VG, है ना। तो वर्टिकल जो रहेगा उसको ग्रुप बोलेंगे, ओके। कितना ग्रुप रहेगा, है ना, 1 to 8, ओके, 8 बनाया उसने, है ना, 1 से लेकर 8 ग्रुप बनाया, ओके। फर्दर 1 to 7 को वापस उसने क्या किया, सब डिवाइड किया। तो उसका मेरिट देखते हैं हम लोग, है ना। मेन फीचर्स पहले देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियड टेबल्स आर कॉल्ड पीरियड्स एंड दे आर 7 पीरियड्स, ओके, दे आर नंबर 1 to 7 पीरियड्स है हॉरिजॉन्टल। here lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, okay, they are in horizontal, okay, horizontal है ना, तो this is called as period, they all are in one period, okay, they all are in period 1 सेम पीरियड में आ रहे लोग, है ना। ठीक है, तो ग्रुप क्या बनाया था, लिथियम एंड बेरिलियम दे आर मेटल, ओके, बोरॉन इज मेटोलाइट एंड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दे आर नॉन मेटल। अभी एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, तो क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, स्लो स्लो वेरिएशन हो रहा है, मतलब मेटल से नॉन मेटल बनते जा रहे हैं, है ना। बीच में मेटोलाइट, है ना, आफ्टरवर्ड लास्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट के राइट की तरफ नॉन मेटल हो रहे हैं। वर्टिकल कॉलम है ना, उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे ना। तो दे आर कितना, हाउ मेनी, 8 ग्रुप, ओके, 1 to 8 ग्रुप्स है ना। फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू A एंड B। तो मेरिट देखते हैं इसका। तो ही वॉज फर्स्ट, ओके, जो भी नॉन एलिमेंट था 63 के आसपास नॉन एलिमेंट थे, तो उसको सारे को उसने क्या किया, क्लासिफाई किया, ओके, प्रॉपर जगह पे, ओके, टेबल के फॉर्म में उसने पुट किया था, है ना। और जो उस टाइम नॉन नहीं थे, ओके, तो उसने उसके लिए वैकेंट रखा, है ना, प्रिडिक्ट किया कि ऐसे एलिमेंट आगे फ्यूचर में पाया जाए। तो ये जीनियस है उसका कि उसने जो एलिमेंट नहीं है, तो उसने वो क्या किया, उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि ऐसा एलिमेंट आएगा, तो उसका नाम रखा उसने, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, है ना। एक का मतलब अल्टरनेट, ओके, इसके बाद में जो अगला एलिमेंट आएगा, है ना, तो उसने प्रिडिक्ट कर दिया था कि हाँ ऐसा एलिमेंट आएगा। जैसे यहाँ पे
उसने स्पेस छोड़ दिया, उसको कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं मिले, ही लेव द स्पेस ना, यहाँ पे ओके, ही लेव द स्पेस। हाँ देखो, जहाँ जहाँ पे स्पेस उसने एलिमेंट छोड़ दिया, ये एलिमेंट बाद में उसको हमें मिला, ओके, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन उसने नाम दिया, ओके, और जो कि बाद में ये एलिमेंट मिला, ओके, सी अब जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ओके, दिस ऑल एलिमेंट ही गॉट, ओके, देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये एलिमेंट उसको बाद में डिस्कवर किया। देखो एलिमेंट क्या था, इक्का बोरॉन किसको, स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम, गैलियम और इक्का सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, दीज ऑल एलिमेंट आर फाउंड आफ्टरवर्ड्स ना, डिस्कवर हुआ तो वो सेम प्रॉपर्टी पे सेम जगह पे ना, है ना, उसको क्या किए, पुट कर दिए। एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट आर रिवाइज्ड, ओके, है ना, कुछ एलिमेंट के जो मास थे ना, एटॉमिक मास, वो क्या है, गलत थे। तो उसको क्या किया, उसने वापस से चेक किया प्रॉपर्टी के थ्रू कि नहीं, ये उसका मास क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, जो मास होना चाहिए उससे डिफरेंस हो रहा है। तो उसने क्या किया, वापस से चेक किया, उसको चेंज किया, प्रॉपर्टी से कंपेयर किया, इसका प्रॉपर्टी सेम है, इसका प्रॉपर्टी सेम है, तो यहाँ पे होना चाहिए, तो एटॉमिक मास से डिफरेंस आ रहा है, मतलब एटॉमिक मास में क्या डिफरेंसेस है। एग्जांपल बेरिलियम, देखो 14.09 है ना, इसका अज्यूम्ड ओके मास इतना था, लेकिन व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू, उसने किसने किया 9.4, ये मेंडलीव का है। तो बेरिलियम को बोरॉन से पहले इसने रखा। नोबेल गैस है ना, बाद में पाया गया, ओके, तो उसने क्या किया था कि स्पेस छोड़ दिया था, 8वां, ओके, 8 जो था ना कॉलम, उसमें स्पेस छोड़ दिया था कि जो दूसरा नोबेल गैस वो क्या हुआ, बाद में उसको विदाउट डिस्टर्ब किए दूसरे एलिमेंट को, उसमें सारे के सारे नोबेल गैस जो इनर्ट गैस है उसको पुट कर दिए। ये था का मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ओके, ये जो लाइनिंग, ओके, डॉबर्नियर दिखा रहा है, नॉन, उस टाइम नॉन थे, ओके, दीज आर नॉन एलिमेंट, ये अननोन एलिमेंट थे, ये बाद में पुट किया गया, ओके, जैसे नोबेल गैस सारे के सारे, है ना, यहाँ पे विदाउट डिस्टर्बिंग अदर एलिमेंट ये पुट कर दिया गया यहाँ पे। ये तो एक्चुअली इधर होना चाहिए था, लेकिन ये इधर है थोड़ा, ये उस टाइम उसने बनाया था। ये नोबेल गैस, ओके, इनर्ट गैस एलिमेंट है ना। अब ये प्रॉपर्टी देखते हैं, जो इक्का एल्यूमिनियम और गैलियम का, जो इक्का एल्यूमिनियम प्रिडिक्ट किया था उसने, अब प्रॉपर्टी, ये किसका प्रॉपर्टी था, ये मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था कि ये प्रॉपर्टी रहेगा, ऐसा एलिमेंट आगे ओके फ्यूचर में मिलेगा, तो उसने प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट किया कि ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी रहेगा उसका। तो देखते हैं, जैसे एटॉमिक वेट उसने प्रिडिक्ट किया 68, तो बाद में गैलियम का वेट क्या हुआ, उसका वेट कितना है 69.72 आया। उसने प्रिडिक्ट किया कि डेंसिटी क्या होगा, उसका सॉलिड होगा, है ना, प्रॉपर्टी क्योंकि मैच हो रहा था, वहाँ पे एल्यूमिनियम के नीचे था ये, तो इसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, सॉलिड क्या रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, तो 5.94 को मिला। मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। वैलेंसी 3 है, तो वैलेंसी 3 उसका मिला भी, है ना। क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्या होगा, ECl3 होगा, है ना, फार्मूला बनेगा, तो गैलियम का GaCl3 बना। ऑक्साइड के साथ E2O3, ये केमिकल फार्मूला के बनेगा, जो भी अननोन एलिमेंट है। तो जो जब गैलियम मिला तो क्या बना, Ga2O3, ये एलिमेंट का फार्मूला बना, है ना। तो ये क्या हुआ, इसका प्लस पॉइंट हुआ कि वो जो एलिमेंट नहीं था उस टाइम, उसका प्रॉपर्टी उसने प्रिडिक्ट किया, और उसने उसके लिए स्पेस छोड़ के रखा था कि ऐसा एलिमेंट मिलेगा और उसका ये प्रॉपर्टी रहेगा, और जब वो एलिमेंट मिला तो उसका प्रॉपर्टी वैसा ही का वैसा ही प्रॉपर्टी मिल गया। ओके, है ना। तो जब प्रॉपर्टी मैच हो गया तो सारे पब्लिक को ये साइंटिस्ट को ये यकीन हो गया कि इम्पोर्टेंट बहुत ये जो मेंडलीव का है वो एक्सेप्टेड हो गया, प्रेडिक्टेबल, है ना, क्योंकि उसने फ्यूचर का भी क्या किया था, प्रिडिक्शन कर दिया था। अभी देखते हैं डी मेरिट ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्टेबल। डी मेरिट क्या, देखो यहाँ पे मैंगनीज एम है ना, मैंगनीज क्या है, मेटल है, लेकिन उसने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया उसको, ये हेलोजन, ये नॉन मेटल की कैटेगरी में पुट कर दिया, तो ये तो गलत हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक हो गए, वन बाय वन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी देखो कोबाल्ट 68.9 है और ये 58.7 है ना, तो एटॉमिक मास इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो ये इट शुड बी हियर, है ना, ये इधर होना चाहिए। तो लेकिन क्या किया, इसको पहले रखा कोबाल्ट को, और निकल को बाद में रखा, तो ये इसका रॉन्ग हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हो, हाइड्रोजन क्या था, एल्कली मेटल और
हेलोजन के जैसा बिहेव करता है ना, मेटल नॉन मेटल के जैसा दोनों बिहेव करता है ना। उसका कोई फिक्स जगह पे नहीं रखा था, उसे फिक्स जगह पे नहीं रखा था उसने, मेंडलीव ने, तो जिसकी वजह से ये डीमेरिट है, लिमिटेशन भी बोलते हैं इसको। ग्रुप 1 है ना, उसमें जो बनाया था 1 to 7, तो 1 में उसने क्या किया कि नोबेल गैस को रखा, और 7 तक फ्लो किसको रखा था, हेलोजन को रखा था। फिर ये बाद में ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसको ये कैटेगरी हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट को बीच में रखना चाहिए था, नॉन मेटल और मेटल के बीच में, है ना। तो हेलोजन से स्टार्ट किया, तो ये थोड़ा गलत लग रहा था। आइसोटॉप, आइसोटॉप किसको बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ओके क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट एटॉमिक मास डिफरेंस होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन क्या है, 2 तरह का ऑक्सीजन मिलते होंगे, एक का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 16 है, दूसरे का 18 है, एटॉमिक मास 16 है एटॉमिक, और इसका 18 है, लेकिन एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, सेम है। तो केमिकल फॉर्मूला भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अब ये जब एटॉमिक मास के थ्रू रख रहा था मेंडलीव, एटॉमिक मास के थ्रू, तो दोनों डिफरेंस होना चाहिए था, है ना। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन इधर हो जाना चाहिए था, तो उसने ऐसा नहीं किया, तो ये क्या हो गया, डीमेरिट हो गया, कि उसने आइसोटोप का आंसर नहीं दे पाया, है ना। कि 2 ऑक्सीजन है, अलग अलग एटॉमिक मास है, तो उसको कैसे करेंगे, तो कहाँ पे प्लेस करेंगे, तो ये इसका डीमेरिट हो गया। जैसे देखो यहाँ पे एलिमेंट विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी, मैंगनीज, मैंगनीज की प्रॉपर्टी डिफरेंट, विथ क्लोरीन, फ्लोरीन से अलग है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, तो इसके सेम ग्रुप में उसने डाल दिया था, तो ये गलत हो गया, इसका ये डीमेरिट हो गया। यहाँ पे मैंने बताया कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है, तो इट शुड बी इन प्लेस ऑफ निकल, और निकल का कम है, तो इट शुड बी प्लेस ऑफ कोबाल्ट, तो इट इज़ रॉन्ग ओवर हियर। साइंटिस्ट वर्ल्ड डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ एटम। हाँ, तो पहले उतना मालूमात नहीं था कि एटम के अंदर क्या है, एटम को मालूम था कि हाँ एटम में उसके मास है और ऐसे मालूम था, लेकिन उसके एटम के अंदर का मालूमात नहीं था, ये बाद में मालूम पड़ा। ओके, तो सर जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, है ना। उसके बाद वो एटॉमिक नंबर और ये सब फार्मूला बना कि एटॉमिक नंबर भी है, एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड है। और ये फिर बाद में जाके सारे एलिमेंट का सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या बनने लगा, एटॉमिक नंबर से ओके क्लासिफाई होने लगा। तो ये कौन क्या डिस्कवरी, हेनरी मोसेली है ना, इंग्लिश फिजिस्ट थे ना, इंग्लैंड के रहने वाले थे। तो उसने डिमोन्स्ट्रेट किया कि एक्सरे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो एक्सरे ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करने में ना उसने पाया कि जो एलिमेंट है ना ये तो वो बोला कि जो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो उसमें एक्सरे का डिफरेंसेज आ रहा है, एक्सरे का क्या हो रहा है, डिफरेंसेज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, जिसमें कम है, तो उसमें क्या हो रहा है, उस कैटेगरी से क्या हो रहा है, उसमें एक्सरे में चेंजेस आ रहे थे। तो उसने बोला कि अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है ना, चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है, ये ज़्यादा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ना। और उसने देखा कि पहले का क्या डीमेरिट था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए, तो उसको पता लग गया कि नहीं, ये जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है एलिमेंट का। तो इससे क्या हो गया, पूरा एटॉमिक नंबर की वजह से जो भी प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गया, है ना, एलिमेंट का प्रॉपर्टी सब चेंज हो गया एटॉमिक नंबर की वजह से। पहले एटॉमिक मास करते थे, ये जो इज द फर्स्ट पर्सन हु, है ना, सेट की एटॉमिक नंबर यूज होना चाहिए, एटॉमिक मास यूज नहीं होना चाहिए फॉर डिफाइनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसका प्रिडिक्शन था, तो यह साइंटिफिक। अब ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सबके एलिमेंट है ना, एलिमेंट में लिथियम में देखते हैं कि इसका जो एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1 है, उसके बाद 2 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे ऐसे सीरियल वाइज में जा रहा है। लेकिन ये जो नीचे ग्रुप में इसका सेम है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना, 2 1 2 8 1 ओके। तो लास्ट के जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, यहाँ पे सेम हो रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, और ये सीरियल वाइज में जा रहे हैं ऐसे, है ना। तो ये बोले कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड है। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है एलिमेंट के, ना कि एटॉमिक मास के, ओके है ना। अभी देखो वैलेंसी बता रहे हैं यहाँ पे 1 वैलेंसी 2 वैलेंसी 3 4 5 है ना। वैलेंसी क्या कम यहाँ पे से इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे वापस से डिक्रीज होने लगा, वैलेंसी डिक्रीज होने लगा, ठीक है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना 8 कंप्लीट होने के लिए, ऑक्टेट याद है ना, ऑक्टेट मैंने बताया था। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो 8 हो जाएगा, तो 1 क्या कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। तो इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है, स्टेबल 8 है, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 8 है ऑलरेडी, तो ये इसके पास वैलेंसी 0 है। तो आप जो चैप्टर में पढ़ाया था स्टार्टिंग में, अगर वो आप अच्छे से करेंगे तो अब भी आपको यूज़ होगा। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म ऐसे ही रहता है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या, ये जो है ना पहला जो हॉरिजॉन्टल ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टल है ना, एच पी, ओके हॉरिजॉन्टल मतलब ओके दिस इज द हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। और जो इस तरह वर्टिकल है इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, है ना, इसको ग्रुप बोलेंगे। तो दिस इज द पीरियड ना, और दिस इज द हॉरिजॉन्टल रो इज द पीरियड, टेबल को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, याद रखना, ओके कंफ्यूज नहीं होना। और इसको ग्रुप बोलेंगे, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलेंगे। अब इसको क्या ज़्यादातर 118 एलिमेंट हो गया, ओके, तो उसने क्या किया बहुत ज़्यादा, तो पीरियोडिक टेबल को और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो लंबा कर दिया, तो 18 ग्रुप है, कितना हो गया ग्रुप, 18 ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करें तो यहाँ तक क्या 18 आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, ओके वी कैन सी। और जो दो पीरियड को क्या किया उसने, एक्सटेंड कर दिया, है ना, मॉडर्न पीरियड एक्सटेंड कर दिया, ये इसी का पार्ट है, यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, ये इसी का हिस्सा है, ओके अलग से नहीं है पीरियड। अब इसमें भी क्या किया उसने, कैटेगरी किया, ओके ये एक कैटेगरी का, ये दूसरा कैटेगरी का, ये दूसरा कैटेगरी का, ये इसने बनाया अभी, ओके जस्ट आई विल टेल यू, ओके दिस इज 1 2 3 4 7, दिस इज द पीरियड, है ना। हॉरिजॉन्टल क्या है, पीरियड है ये, है ना, कितने पीरियड है, 7 पीरियड है ना? और कितने ग्रुप कितने हुए, 18, ठीक है 1 2 3 4 है ना, 18 तक हो गया, 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। तो ये सिमिलर को क्या किए, कैटेगरीज में डाले, ओके ये दोनों का थोड़ा फीचर सेम है, ये दोनों ये सबका फीचर सेम है थोड़ा, है ना, तो ऐसा पुट किए, ये सेम फीचर से उधर, तो सब पुट कर रहे हैं, ओके। लिथियम बेरिलियम, ओके है ना, उसके बाद क्या है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन एंड नियॉन, ओके उससे पहले हाइड्रोजन और ये हीलियम है। पहले पीरियड क्या एकदम से शॉर्टेज है, 2 ही एलिमेंट है उसमें, पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट अरेंज हुआ, दूसरे में फिर कितना हो गया, है ना, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट कितना हुआ उसमें अरेंज हुआ, ये दोनों सेम है ना। दिस इज द शॉर्टेस्ट, दिस इज द सेकंड टू शॉर्टेस्ट, ओके द शॉर्ट, दिस इज द शॉर्ट एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट, द फर्स्ट पीरियड क्या शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्ट है ना। उसके बाद देखो मैग्नीशियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, है ना, ये कहाँ तक है, आर्गन तक है। अभी ये ऐसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ओके। अभी यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ 57 से 71 है ना, इसको क्या किया आगे एक्सटेंड कर दिए, आगे यहाँ पे पुट कर दिए। ये क्यों पुट कर दिए कि इनका कैरेक्टरिस्टिक सेम हो रहा था, तो बोले कि अभी ये अगर यहाँ पे पुट करते तो हमारा पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये बुक में पुट करना ये मतलब पॉसिबल नहीं होगा, इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बुक के बाहर हो जाएगा। तो इनको क्या किया, ये यहाँ से यहाँ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक था तो इसको आगे कर दिए, इसको यहाँ से मूव कर दिया और इसको यहाँ पे लिखते, मतलब ये इधर से इधर का ही है 57 to 71, तो यहाँ से 58 से 71 तक का यहाँ पे ही है ना। और ये नीचे भी ऐसे किए 89 to 103, तो 89 के बाद आता है 90, तो ये यहाँ का हिस्सा ही है, ओके इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन इसको यहाँ पे क्यों आगे किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होगा तो हमें डिफ़िकल्ट होगा, ओके उसको पढ़ने में। दिस इज द एलिमेंट, ओके विच इज फाउंड इन द सेम ग्रुप, तो इनका क्या होगा, प्रॉपर्टी सिमिलर रहेगा, ये एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या सिमिलर रहेगा, है ना।
ये दिस इज लिथियम एंथ्राइड, ओके। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, ये जो सीरीज होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको लैंथेनाइड बोलते हैं और ये एक्टिनाइड बोलते हैं। इनका है ना प्रॉपर्टी सेम है, इनका प्रॉपर्टी सेम है, ओके। इसलिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलते हैं ना। 14 एलिमेंट दोनों में है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगेन ये कैटेगरीज में है ना। जो पहले दो ग्रुप है ना उसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। उसके बाद वाले जो इधर है 13 से लेकर 18 को वी से पी ब्लॉक, और ये जो बीच में है ना 3 से लेकर के 12 तक उसको डी ब्लॉक बोला जाता है, जो ट्रांसलेशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और ये एफ ब्लॉक है, यहाँ से यहाँ एफ ब्लॉक इसको बोलते हैं, एस ब्लॉक है ना। दिस इज एस ब्लॉक, दिस इज द पी ब्लॉक एंड दिस इज द डी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक है ना। ये पूरा एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक में क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा सिमिलर प्रॉपर्टी है शेयर ग्रुप 1 and 2, ओके। ऑल द एलिमेंट हैविंग द 1 and 2 विल हैव आइदर 1 or 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट, है ना। शेयर यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1, लिथियम में कितने रहेंगे 1। कैसे देखते हो, ओके। ये लिथियम का Li है ना। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 3। ये एटॉमिक नंबर है, लिथियम का कितना है 3 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाते हैं। दिस इज द न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 2, ओके। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में कितना बचा 1 इलेक्ट्रॉन, ओके है ना। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में भी लास्ट ऑर्बिट में कितना था 1 इलेक्ट्रॉन था। इसी तरह देखो सोडियम, सोडियम है ना 11 है ना। सोडियम का देखते हैं, सोडियम Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 20, ओके 11 हो गया है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, पहले ऑर्बिट 2 देन 8, कितना बच गया 1 है ना। तो इसको बनाते ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, अभी कितना बच गया 1 है ना। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में भी कितने इलेक्ट्रॉन थे 1 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम में भी कितने थे 1 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन हो रहे है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में भी क्या हो रहे हैं 1 हो रहे हैं। उसी तरह पोटेशियम में भी देखेंगे लास्ट ऑर्बिट में कितना रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 8 है ना, 2 8 10 हो गया। उसके बाद वापस से थर्ड ऑर्बिट में 8 है ना, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिट में क्या हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे इसमें क्या हो रहा है ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और ये वाले ग्रुप में क्या हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। ठीक है, मैग्नीशियम का देख लेते हैं वापस से। मैग्नीशियम Mg12 है ना, 12 है इसका एटॉमिक नंबर। तो पहले ऑर्बिट में क्या होगा 2 8 2, यस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं इसका एटॉमिक है ना। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, इसे बना देते हैं। पहले ऑर्बिट में ये 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना मैग्नीशियम का। लास्ट ऑर्बिट में कितना हो रहा है बचा, लास्ट में 2 बच गया ना, 2 बच गया है ना मैग्नीशियम का। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना। तो ये सारे के सारे एक ग्रुप इसमें लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, रिमेनिंग रहेंगे। तो ये सेम प्रॉपर्टी है ना, इसको एक्स ब्लॉक बोलते हैं। अब ये क्या होगा कि सारे डोनेट करे इलेक्ट्रॉन है ना, और ऑल जो सारे क्या है मेटल से एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मेटल नहीं है। अभी जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना तो क्या करते हैं कि ये अल्कलाई बनाते हैं। क्या बनाते हैं अल्कलाई। तो इसीलिए अल्कलाई मेटल भी बोलते हैं इसको, और ये नॉर्मल मेटल भी है क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं ना, आउटरमोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट है ना, और सिर्फ आउटरमोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट है तो इसलिए नॉर्मल एलिमेंट भी बोलते हैं इसको। अभी पी ब्लॉक है ना 13 से लेकर के ना, मैं बताया कि ये क्या होता है पी ब्लॉक होता है।
या 13 14 15 16 17 18 क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये पी ब्लॉक में देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऊपर में हीलियम है, बाजू में इधर ओके नियॉन इज देयर। अब यार 13 से 18 तक। अब इसमें क्या हो रहा है, कंटेंट 3 to 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 या 8। देखो बोरॉन, इसी के लिए मैं उस दिन ना पहले इस चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया था। इसके कितने एटॉमिक नंबर, जेड कितने बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5 है ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे 2, थर्ड लास्ट ऑर्बिट में 3 रहेंगे। का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3, लास्ट ऑर्बिट में क्या हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह अब इसमें 3 है तो इसमें एक ज़्यादा हो गया तो 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए ना, तो ये क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। ये सारे इसमें ये सिमिलर रहेगा। अब एल्यूमिनियम में भी देखो तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रहेंगे 2 रहेंगे, सेकंड ऑर्बिट में लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या बोलते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2 8 कितना हो गया 10। अब ये कितना है 13 है ना, तो लास्ट ऑर्बिट में क्या रहेगा, थर्ड ऑर्बिट में 13 ओके 3 रहेगा, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन देंगे है ना। तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4 है 4 है 4 रहेगा, यहाँ पे 5 है तो 5 है, यहाँ पे 2 है तो 2 2 2 रहेगा है ना। 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे ओके, 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे कम रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ओके, उसको स्टेबल करने के लिए। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन देंगे ओके, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन देंगे लास्ट ऑर्बिट में, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रहेंगे, और यहाँ पे पूरे के पूरे ग्रुप में 8 इलेक्ट्रॉन देंगे ओके है ना। तो ये सारे स्टेबल हो जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है स्टेबल होने के लिए, इसका वैलेंसी क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो वैलेंसी इसका 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को चाहिए ओके स्टेबल होने के लिए। यहाँ पे 3 चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए है ना, यहाँ पे वापस से 3 चाहिए, तो यहाँ पे 4 के बाद 4 3 2 1, और यहाँ पे 3 हो रहा है। अब देखो जिगजैग जो दिख रहा है ये जिगजैग, हाँ अब ये जिगजैग क्या बता रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है केयरफुली। ये बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक है ना, ये एंटीमनी है ना, ये सारे जो है ये क्या है मेटलॉइड है ना, जो डिवाइड करे मेटल को नॉन मेटल से। ये इधर मेटल है और इधर नॉन मेटल ओके, और ये जो जिगजैग टच हुआ जिधर तो क्या हो गया मेटलॉइड हो गया। ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दिस ब्लॉक ओके कंटेन में नॉर्मल एज वेल एज इनर्ट एलिमेंट। इनर्ट एलिमेंट किसको बोले, ये इसको बोले ओके नोबल गैस को है ना, क्योंकि ये स्टेबल है तो इसलिए इनर्ट बोले, और बाकी सब क्या है नॉर्मल है। लास्ट ऑर्बिट ही सिर्फ क्या है इनकम्प्लीट है। अब डी ब्लॉक में क्या होता है कि 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं ओके, और उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसको बोलते हैं ना, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल में क्या हो रहा है डिफरेंस कर रहा है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में बीच में ना, तो इसकी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इसको हैवी एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ला ओके 3 to 12 ओके आर नोन एज हैवी एलिमेंट।